السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، خوش آمدید وزڈم ہورائزن میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم قرآن، سائنس، فلسفہ اور روحانیت کو ایک ساتھ رکھ کر کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت پرجوش، دہکتی ہوئی اور خوفناک حقیقت کی کھوج کرنے جا رہے ہیں۔ آتش فشاں والکینوز، یہ وہ پہاڑ ہے جو صدیوں تک خاموش رہتے ہیں اور پھر اچانک دہاڑتے ہیں۔ ان کے دہکنے سے صرف لاوا نہیں بہتا، بلکہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے راز بھی آشکار ہوتے ہیں۔ قرآن نے بھی ایسے مناظر کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جدید سائنس آج ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن نے آتش فشاں جیسے مظاہر کا ذکر کیا ہے؟ جدید جیولوجی آتش فشاں کو کیسے سمجھتی ہے، اور ان میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہے؟ یہ سفر صرف ایک سائنسی گفتگو نہیں، بلکہ ایک روحانی اور فکری مہم ہے جو ہمیں قرآن کی آیات سے کائنات کی حقیقتوں تک لے جائے گا۔ قرآن میں لفظ آتش فشاں براہ راست استعمال نہیں ہوا، لیکن ایسی آیات موجود ہیں جو زمین کے پھٹنے، دہکنے اور اپنے بوجھ نکال پھینکنے کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ مفسرین نے ان آیات کو آتش فشانی واقعات کے ساتھ جوڑا ہے۔ سورہ الطارق آیت 12، اور زمین جو پھٹنے والی ہے، یہاں صد کا مطلب ہے زمین کا شگاف، دراڑ یا پھٹ جانا۔ یہی وہ عمل ہے جو آتش فشانی واقعات میں ہوتا ہے۔ جب زمین کے نیچے دبا ہوا لاوا اوپر آتا ہے تو کرسٹ پھٹتا ہے اور زمین دہکنے لگتی ہے۔ سورہ الزلزال آیات 1 سے 2، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ یہاں افقال یعنی زمین کے بوجھ سے مراد وہ مواد ہے جو زمین کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے، معدنیات، دھاتیں اور دہکتا ہوا میگما۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آتش فشاں کے وقت باہر آتی ہیں۔ سورہ التین آیت 8، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں؟ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ یہ دہکتے پہاڑ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا، اس میں زلزلے، آگ اور پتھروں کی بارش کا ذکر ہے، جو ممکنہ طور پر ایک عظیم آتش فشانی اور زلزلے کا ملا جلا واقعہ تھا۔ اب ذرا سائنسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آتش فشاں اصل میں ہے کیا۔ آتش فشاں والکینو وہ پہاڑ ہے جو زمین کی تہہ کرسٹ میں شگاف سے لاوا، گیس اور راخ اگلتا ہے۔ زمین کی ساخت ارتھس انٹیریئر، زمین کی 3 بنیادی لیئرز ہیں۔ کرسٹ اوپر کی تہہ، یہ وہ سخت تہہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں، موٹائی اوسطاً 5 سے 70 کلومیٹر ہے۔ مینٹل بیچ کی تہہ، یہاں ٹیمپریچر 1000 سے 3000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اس میں میگما، پگھلا ہوا پتھر موجود ہے۔ کور مرکز، اندرونی کور لوہے اور نکل سے بھرا ہوا ہے اور سورج کی سطح سے بھی زیادہ گرم ہے، تقریباً 6000 ڈگری سیلسیس۔ جب مینٹل میں پریشر بلڈ ہوتا ہے تو کرسٹ میں شگاف پڑتا ہے اور میگما اوپر آ کر والکینو ایرپٹ کرتا ہے۔ ایرپشن کیسے ہوتا ہے؟ مینٹل میں ہیٹ بلڈ اپ ہوتا ہے، گیسز CO2، SO2، میگما بہہ کر سرفیس پر آتا ہے اور لاوا میں بدل جاتا ہے۔ یہ پورا عمل کئی سال، صدیوں یا ایک لمحے میں ہو سکتا ہے۔ سائنسدان آتش فشاں کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ شیلڈ والکینوز، یہ آہستہ آہستہ بہنے والے لاوے سے بنتے ہیں، بہت چوڑے لیکن کم اونچے ہوتے ہیں۔ مثال ماؤنا لوا ہوائی، دنیا کا سب سے بڑا والکینو۔ اسٹریٹو والکینوز، کمپوزٹ والکینوز، یہ سب سے خطرناک اور دھماکہ خیز والکینوز ہیں۔ ان کے ایرپشنز میں دھماکے، آگ اور راکھ شامل ہوتی ہے۔ مثال ماؤنٹ فوجی جاپان، ماؤنٹ ویسوویس اٹلی۔ سب مرین والکینوز، یہ سمندروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ دنیا کے 70% والکینوز سمندر کے نیچے پائے جاتے ہیں۔ ان کے پھٹنے سے نئی آئیلینڈز بنتی ہیں۔ سپر والکینوز، یہ انتہائی بڑے اور تباہ کن والکینوز ہیں۔ ایک بار ایرپٹ ہو جائے تو پورے زمین کا موسم بدل سکتے ہیں۔ مثال یلو سٹون USA، ٹوبا انڈونیشیا۔ تاریخ میں آتش فشاں ہمیشہ سے خوف اور تباہی کی علامت رہے ہیں۔ انسان نے صدیوں تک ان کو خداؤں کا غضب سمجھا، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ سب اللہ کی قدرت اور نظام کا حصہ ہے۔ قوم لوط اور آتش فشانی دھماکہ۔ قرآن میں قوم لوط کے انجام کا ذکر یوں آتا ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا
व अमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिग्गीलिन मंदूदिन। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये वाक़या ज़लज़ले और आतिशफ़शानी अमल का मिलाप था। आज भी डेड सी के करीब वो इलाके मौजूद हैं जहां गंधक, सल्फर के पत्थर और जली हुई तहें मिलती है। ये निशानी है कि कौम लूत पर आने वाला अजाब सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक हकीकी जियोलॉजिकल वाक़या था। मदीन और समूद के इलाके कुरान में कौम समूद के बारे में सय्यहता, एक ज़ोरदार धमाका और रजफा ज़लज़ला का जिक्र है। पोम्पेई का इबरतनाक अंजाम। 69 AD में इटली के शहर पोम्पेई पर माउंट वेसुवियस फटा। चंद घंटों में पूरा शहर लावे और राख के नीचे दब गया। लोग खाने, खेलने और काम करने की हालत में ही जम गए। ये वाक़या कुरान की इस आयत की तफसीर लगता है, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़न्बिही, हमने हर कौम को उसके गुनाह पर पकड़ा। पोम्पेई आज भी एक म्यूज़ियम की तरह है जहाँ वक्त ठहरा हुआ है और इंसान को सबक देता है कि अल्लाह की कुदरत के आगे कोई तहजीब नाकाबिले शिकस्त नहीं। क्रैकटोआ का धमाका 1883। इंडोनेशिया का ये वोल्केनो तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड धमाका था। उसकी आवाज़ 1400-800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। लाखों लोग मर गए और पूरी ज़मीन का टेम्परेचर गिर गया। कई साल तक दुनिया भर के सूरज गुरूब सुर्ख नज़र आते थे। येलोस्टोन, USA, ये एक सुपर वोल्केनो है जो अब तक फटा नहीं, लेकिन अगर फट गया तो पूरी ज़मीन पर खुराक का बुहरान पैदा हो जाएगा। साइंस कहती है कि ये वोल्केनो तकरीबन हर 600,000 साल में फटता है और आखिरी इरप्शन को 640,000 साल हो चुके हैं। साइंस कहती है कि वोल्केनोज सिर्फ तबाही नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। फ़वाइद: ज़मीन की सरखेज़ी, लावे में मिनरल्स होते हैं जो ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाते हैं। आज के बहुत से खेत वही हैं जो पुराने वोल्केनोज की राख पर अगे। कीमती मादनियात वोल्केनोज प्लैटिनम, गोल्ड, निकल और हत्ता के हीरे भी सरफेस पर लाते हैं। नई ज़मीन की तख्लीक हवाई और आइसलैंड जैसी आइलैंड्स समंदरी वोल्केनोज से बनी हैं। माहौलियाती तवाज़ुन: वोल्केनोज से निकलने वाला CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस ना हो तो पौधे जिंदा न रहें। सुकिए नुकसानात: जानों का ज़िया, पोम्पेई 79 AD, क्रैकटोआ 1883 और दीगर धमाकों में लाखों लोग मर गए। क्लाइमेट चेंज: सुपर वोल्केनो इरप्शन पूरे मौसम को बदल देता है। सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचती और कहत पड़ जाता है। ज़मीन पर तबाही लावा खेतों, शहरों और जंगलात को तबाह कर देता है। साइंसदान वोल्केनोज को ऑब्जर्व करते हैं ताकि इंसानों को बचाया जा सके। साइज्मिक एक्टिविटी: छोटे ज़लज़ले इरप्शन का इशारा देते हैं। गैस एमिशंस: जब CO2 और SO2 ज़्यादा निकलने लगे तो वोल्केनो एक्टिव होता है। ग्राउंड डिफॉर्मेशन: ज़मीन ऊपर उठने लगे तो मैग्मा करीब है। थर्मल चेंजेस: टेम्परेचर बढ़ने से पता चलता है कि इरप्शन करीब है, लेकिन हकीकत यह है कि आज की टेक्नोलॉजी भी वोल्केनोज को रोक नहीं सकती। हम सिर्फ अलर्ट दे सकते हैं, लेकिन इरप्शन अल्लाह के हुक्म के साथ होता है। नाजरीन, अगर हम सिर्फ आतिशफ़शां को एक साइंसी मजहर के तौर पर देखें तो ये ज़मीन के अंदर दबाव, लावा और गैसों का इखराज है, लेकिन अगर हम इसको कुरान और हिकमत की नज़र से देखें तो ये सिर्फ एक जियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं बल्कि एक रूहानी अलामत भी है। कुरान बार बार हमें याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की निशानी है। यही वजह है कि आतिशफ़शां को सिर्फ ज़मीन का वेंट या प्रेशर रिलीज ना समझा जाए बल्कि इसको एक तंबीही वार्निंग समझना चाहिए। वोल्केनो डिवाइन रिमाइंडर: जब ज़मीन दहकती है तो हमें जहन्नम की आग याद दिलाई जाती है। जब पहाड़ फटते हैं तो हमें याद आता है कि दुनिया कायम रहने के लिए नहीं बल्कि फना होने के लिए है। जब इंसान अपनी ताकत पर गुरूर करता है तो आतिशफ़शां लम्हों में इसकी सल्तनत को राख कर देता है। यही वो पैगाम है जो कुरान देता है, और तुम कुछ नहीं चाह सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे। इन पहाड़ों का दहकना हमें याद दिलाता है कि असल ताकत और इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। कुरान में बार बार ज़मीन के फटने, आग के भड़कने और आसमान के धुएं का जिक्र मिलता है। मुफस्सिरीन इनमें कई जगह आतिशफ़शानी इशारे देखते हैं। सूरा अल-ज़लज़ाल: ये आयात एक बड़े ज़मीन लरज़ने और ज़मीन के अंदर छुपी चीज़ों के निकलने की तस्वीर पेश करती हैं। ये आखिरी दिन का भी मंजर है और आतिशफ़शानी धमाकों की याद दहानी भी। आतिशफ़शां इरप्ट होने पर पहाड़ के अंदर की तह पिघल कर बहने लगती है। यही मंजर क़यामत के दिन और भी बड़े पैमाने पर होगा। सूरा अल-माआरिज
आयत 8 से 9 यौमा तकूनुस समा कल एहन, यानी क़यामत के दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ ऊन के गालों की तरह बिखर जाएंगे। ये मंजर किसी सुपर वॉल्केनो इरप्शन की अक्कासी भी करता है, जिससे आसमान में धुआं, आग और पिघला हुआ मादा भर जाता है। नाजरीन, अगर गौर करें तो इंसान के अंदर भी एक आतिश फिशां है, नफ्स, जज्बात और गुस्सा। अगर ज़ब्त में रहे, ये इंसान को तवानाई देता है, जद्दोजहद और तामीर का जरिया बनता है। अगर काबू से बाहर निकले तो ये हर रिश्ता, हर ताल्लुक और हर जिंदगी को जलाकर राख कर देता है। इनर वोल्केनो मिसालें: ओसा इरप्ट हुआ, खानदान बिखर गया। लालच इरप्ट हुआ, माशरा बर्बाद हो गया। तकब्बुर इरप्ट हुआ, कौमें मिट गईं। अंदर का वोल्केनो भी बाहर के वोल्केनो की तरह है, अगर उसे काबू में ना रखा जाए तो ये सब कुछ तबाह कर देता है। कुदरत की ताकत। आतिश फशां हमें याद दिलाते हैं कि ज़मीन के नीचे ऐसी ताकतें छुपी है जो इंसान के बस से बाहर है। इंसान की आजिज़ी, पोम्पेई जैसी तहजीबें लम्हों में मिट गईं। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने कमज़ोर हैं। कुरानी हिकमत। कुरान ने ज़मीन के फटने, बोझ बाहर निकालने और पहाड़ों के बह जाने के ज़रिए आतिश फशानी इशारे दिए। रूहानी सबक। वोल्केनो सिर्फ साइंस नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का निशान है। क़यामत की याद दहानी। जैसे वोल्केनो इरप्ट होता है, वैसे ही क़यामत भी अचानक आएगी। सब कुछ पलक झपकते में बदल जाएगा। नाज़रीन, आतिश फ़शां सिर्फ एक जियोलॉजिकल मज़र नहीं बल्कि ये अल्लाह के मौजज़ात में से एक निशानी है। ये पहाड़ जब दहकते हैं तो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए, अल्लाह के निज़ाम के सामने बेबस है। ज़मीन के अंदर का ये लावा हमें जहन्नम की आग का तसव्वुर याद दिलाता है, और इंसान के अंदर का नफ्स अगर काबू ना किया जाए तो बाहर के वोल्केनो से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यही वो हिकमत है जो विज़डम होराइज़न आप तक पहुंचाना चाहता है। कुरान और साइंस दोनों हमें यही सबक देते हैं कि ये कायनात एक इम्तिहान गाह है और एक दिन सब कुछ ख़त्म होकर अल्लाह के हुजूर पेश होना है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम कुरान और साइंस के मज़ीद छुपे राज आप तक पहुंचाते रहें।